بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا دکان میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف حمام تھا تو دوسری طرف خالی جگہ پر اس کی کرسی اور آئینہ نصب کیا گیا تھا، جہاں لوگوں کو بٹھا کر وہ ان کے بالوں کی کٹائی کیا کرتا تھا۔ وہ دکان میں داخل ہوا تو حمام سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ پانی کا نل بھی کھلا ہوا تھا، جس سے پانی گرنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ رات کے وقت پانی گرنے کی آواز عجیب سی گڑ گڑاہٹ اور کھڑکھڑاہٹ کی آواز کے ساتھ مل کر عجیب سا شور پیدا کرتی رات کے وقت چھائے سناٹے کو ختم کر رہی تھی، اور اس ہولناک خاموشی میں ایسی آواز شاید نہیں، یقیناً اس کا دل دہلا رہی تھی۔ اس نے خشک حلق کو تر کرتے آگے بڑھ کر حمام کا دروازہ کھولا، مگر سامنے نگاہ پڑتے ہی اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگیں، اور پھر اس عجیب سے شور میں اس کی چیخیں شامل ہوتی عجیب ہی فضا قائم کر گئیں۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں سامنے جمی ہوئی تھیں، جہاں نل سے پانی کی جگہ خون بہہ رہا تھا، اور باتھ ٹب میں اس کا نام شاہد تھا، جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ پیشے سے وہ ایک نائی تھا، جس کا کام لوگوں کی حجامت بنانا اور چھوٹے نوزائیدہ بچوں کی بال مونڈنا تھا۔ اس کے علاوہ وہ محفلوں اور شادی بیاہ کے موقعوں پر کھانا بنانے کا کام بھی کرتا تھا، لیکن زیادہ کام وہ اپنی دکان پر حجامت کا ہی کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کی صفائی اور نفاست کی وجہ سے اکثر لوگ اس ہی کی دکان کا رخ کرتے تھے۔ یوں تو اس کا کاروبار اچھے سے چل رہا تھا، لیکن پھر بھی جب کام نہ ہوتا تو ان سے گزر بسر کرنا مشکل ہو جاتی۔ وہ اکیلا ہوتا تو بھی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک بھرا پڑا کنبہ تھا جسے پالنے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ گھر میں اس کی ایک بیوی، 5 بچے اور ماں باپ تھے۔ باپ معذور تھا اور گھر سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ معذوری کی وجہ سے وہ اکثر پلنگ پر ہی لیٹا رہتا تھا۔ اس کے 5 بچے اسکول میں پڑھتے تھے، جن میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ اس کی آمدنی کا زیادہ حصہ اس کے باپ کے لیے دوائیاں اور بچوں کی اسکول کی فیس اور ان کی کاپیوں پینسلوں کو پورا کرنے میں نکل جاتا تھا، اور پھر گھر میں جو راشن اور سبزی وغیرہ روز کی روز لانی ہوتی، اس کا خرچہ الگ۔ اس کے علاوہ بچوں کے کپڑے وغیرہ اور دوسری ضروریات کی چیزوں پر بھی بہت سے پیسے خرچ ہو جاتے تھے، اور وہ بس ہر وقت اسی بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ زیادہ پیسے کیسے کمائے۔ کوئی اور کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچتا تو 2 وجوہات کی بنا پر رک جاتا۔ ایک تو اس کے پاس نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، دوسرا اس کے پاس کوئی اور ہنر بھی نہیں تھا کہ وہ صرف سوچتا اور دوسرا کام ڈھونڈ لیتا۔ اس دن انہی سوچوں میں گم وہ سائیکل پر سوار شام کے وقت گھر واپس جا رہا تھا۔ راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ جب وہ دوبارہ سے گزرا تو اسے وہاں سے کچھ چیخوں کی آواز سنائی دی۔ وہ گھبرا کر اپنی سائیکل روک کر جنگل میں دیکھنے لگا، مگر گپ اندھیرے کی سوا اس کی آنکھوں کو کچھ بھی اور نظر نہ آیا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا چھوٹا بٹنوں والا فون نکالا اور اس کی ٹارچ روشن کر کے سائیکل کو سڑک پر کھڑا کر کے وہ ڈھلوان میں اترا اور چلتا ہوا جنگل میں پہنچ گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر ماری، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ چیخ جو کچھ دیر پہلے گونجی تھی، اب وہاں اسے کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ اتنی ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اس کے پیروں کے نیچے آتے پتوں کے کرچنے کی آواز بھی عجیب سا تاثر پیش کرتی روح کو لرزا دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ اچانک اسے سامنے جھاڑیاں ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کوئی جانور ہے۔ اس نے چوکنا ہو کر قریب پڑا ایک وزنی پتھر اٹھایا اور زور سے اس طرف پھینکا جہاں جھاڑیاں ہل رہی تھیں۔ اچانک جنگل میں ایک خوفناک دھاڑ کی آواز گونجی، جیسے کوئی جانور غرایا ہو۔ اس نے کسی جانور کی موجودگی کو محسوس کر کے تیزی سے پیچھے مڑنا چاہا، جب اچانک اس کے بال کسی کی گرفت میں آ گئے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، مگر کوئی تھا جو اسے نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بالوں کو سختی سے دبوچے ہوئے تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا، مگر ناکام رہا۔ اچانک اس کے بالوں کو کسی نے جھٹکا دے کر چھوڑا تو وہ اوندھے منہ نیچے جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، اس کا پاؤں کسی نے پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ خوف سے اس کی جان نکلنے لگی، پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً انسان نہیں تھا۔ انسان ہوتا تو نظر بھی آتا،
यकीनन ये कोई गैर मावराई मखलूक थी जिसने उस पर हमला कर दिया था। उसने उस लम्हे को कोसा जब उसने इस जंगल में आने का सोचा था। उस मखलूक ने उसे घसीटते हुए जोर से दाएं जानिब पटका तो वो उड़ता हुआ एक बड़े से दरख्त की जड़ों में जा गिरा। उसका सर जोर से दरख्त से टकराया तो उसके माथे से खून बहने लगा। अचानक उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कोई तेजी से उसके करीब आया हो, और फिर उसे लगा जैसे कोई उसके माथे को चाट रहा हो। वो इतना खौफजदा हो गया कि उसने ना सर हिलाया ना उस मखलूक को पीछे हटाया। अजीब सी बदबू उसके इर्द गिर्द फैलने लगी थी। वो जो कोई भी था उसके दिमाग का सारा खून पी जाता अगर बर वक्त वो उसे झटकता ना तो। उसके झटकते ही वो मखलूक जैसे मजीद गुस्से में आ गई। शाहिद के माथे से खून बहना बंद हो चुका था। उस मखलूक ने शाहिद को बालों से पकड़कर जोरदार धक्का दिया और फिर ना जाने क्या किया कि वो फिजा में उल्टा लटक गया। शाहिद को लगा था उसकी मौत करीब आ चुकी है। तभी वो ऊंची आवाज में रोता हुआ कलमा पढ़ना शुरू हो गया। उसके कलमा पढ़ते ही हर तरफ शोर सा गूंजने लगा, ऐसे जैसे बहुत सारे लोग मिलकर ऊंची ऊंची आवाजों में रो रहे हों। वो आवाज इतनी खौफनाक और कराहत आमेज थी कि शाहिद को अपने कान फटते महसूस हुए। उसने उन आवाजों से बचने के लिए अपने कानों पर हाथ रखे, मगर जैसे ही उसने हाथ कानों पर रखे तो उसके हाथ चिपचिपे से हो गए। उसने खौफ से अपने हाथ सामने किए तो एक जोरदार चीख उसके मुंह से निकली, क्योंकि उसके हाथ खून से भरे हुए थे। यकीनन उसके कानों से ही खून निकल रहा था। उसने तेज आवाज में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे उनकी कराहत आमेज आवाजों में मजीद इजाफा होता गया। अचानक वो फिजा से जमीन पर गिरा तो उसे लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, क्योंकि वो कमर के बल जमीन पर गिरा था। वो तेजी से कलमा पढ़ते हुए उठा और जंगल से बाहर की जानिब जाने लगा। उसके पैरों में भी चोट लग गई थी। तभी वो लंगड़ा रहा था। लंगड़ाता हुआ वो साइकिल तक पहुंचा और तेजी से साइकिल पर बैठता, मुश्किल से पैडल पर पैर मारता घर की तरफ रवाना हुआ। आधे घंटे में वो घर पहुंच चुका था, लेकिन घर पहुंचने तक वो मुकम्मल निढाल हो गया था। उसने साइकिल से उतरकर हाँफते और कराहते हुए दरवाजा खटखटाया, जो उसके बड़े बेटे ने खोला। अपने बाप को इस हाल में देखकर वो घबरा गया और सबको आवाज देता बाप को सहारा देकर अंदर ले गया। चारपाई तक पहुंचते पहुंचते शाहिद बेहोश हो चुका था। शाहिद के सारे बच्चे बाप की दिगरगूं होती हालत को देखकर रो रहे थे। उसकी माँ और बीवी भी शाहिद को इस हाल में देखकर दंग थी। शाहिद की बीवी राबिया ने तेजी से उसके जख्मों को साफ करके उस पर मरहम लगाई। उसके कानों से निकलते खून को भी साफ किया। उसका मट्टी से अटा हुआ चेहरा भी गीले कपड़े से साफ किया। वो ये तो नहीं जानते थे कि उसे क्या हुआ है, मगर उसकी ऐसी हालत सबको परेशान कर गई थी, और जब तक वो होश में ना आ जाता वो जान भी नहीं सकते थे कि उसे क्या हुआ है। 1 घंटे के बाद शाहिद को होश आया था, मगर होश में आते ही वो चीखने चिल्लाने लगा कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। उसकी ऐसी हालत देखकर बच्चे सहम कर कोने में दुबक गए, मगर उसकी बीवी राबिया ने उसे जल्दी से पानी पिलाया ताकि उसके हवास बहाल हों। फिर उसे यकीन दिलाया कि वो अपने घर पर है और बिल्कुल महफूज है, कोई उसे कुछ नहीं कर रहा। कितनी ही देर वो बदहवासी और खौफ से इधर उधर देखता रहा और यकीन करता रहा कि वो घर पर है, और जब यकीन आ गया तो वो रोना शुरू हो गया। उसे रोते देखकर राबिया और शाहिद की मां परेशान हो गई। शाहिद की मां ने कहा कि क्या हुआ था, बताओ तो सही, और क्यों रो रहे हो? शाहिद की मां ने पूछा तो शाहिद अपने आंसू पोंछता शुरू से लेकर सारी बात बताने लगा। बताते हुए वो कराहता भी जा रहा था, क्योंकि उसकी कमर में अब शदीद दर्द हो रहा था। उसकी कमर की चोट का सुनकर राबिया ने उसकी कमर पर गर्म कपड़े से टकोर करवाई, जिससे उसके दर्द में कुछ कमी हुई। शाहिद से सारी बात सुनकर उसकी मां ने कहा कि तुम्हें जरूरत ही क्या थी जंगल में जाने की? वीरानों और जंगलों में जिन्नात का बसेरा होता है, तो यकीनन तुमने वहां जाकर उनकी तन्हाई में खलल डाला होगा। आइंदा कुछ भी हो जाए उन जंगलात में मत जाना। इस बार तो बच कर आ गए हो, अगली बार क्या पता वो क्या कर जाएं। अपनी मां की बात सुनकर शाहिद सर हिलाकर सोने के लिए लेट गया, क्योंकि उस पर गुनूद की तारी हो रही थी। सभी बच्चे भी अपनी अपनी चारपाइयों पर सोने के लिए लेट गए। यह आधी रात का वक्त था जब शाहिद की आंख अजीब सी भिन भिनाहट से खुली। उसने आंखें खोलकर देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसे मुसलसल अजीब सी आवाज आ रही थी। उसकी चारपाई से आगे सभी 6 चारपाइयां लगी हुई थी, जिन पर उसके
बच्चे, बीवी और माँ सो रही थी। उसने कुछ भी ना पाकर करवट बदली, मगर करवट बदलते ही उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उसकी चारपाई पर उसके साथ एक अजीबुल खलकत वजूद लेटा हुआ था, जिसके जिस्म पर काले रंग का लिबास था, चेहरा भी बिल्कुल काला और सारी की सारी काली आंखें थीं, जो अंधेरे में भी बेहद चमक रही थीं। उसका एक हाथ उसके चेहरे पर धरा था, जिसके 3-3 इंच लंबे नाखून थे, जिन्हें देखकर एक और चीख शाहिद के हलक से बुलंद हुई और वो खौफ से आंखें मीच गया। उसकी चीखों की आवाज सुनकर सभी उसकी चारपाई के इर्द गिर्द जमा हो गए और शाहिद की मां शाहिद को झंझोड़ते हुए पूछने लगी कि क्या हुआ है, मगर शाहिद मुसलसल लरसता जा रहा था। उससे अपनी मां को जवाब भी नहीं दिया जा रहा था। राबिया ने शाहिद के चेहरे पर पानी छिड़का तो वो कुछ होश में आया। शाहिद की मां ने एक बार फिर पूछा कि क्या हुआ, तो शाहिद कहने लगा कि वो फिर मेरे पास आया था, वो मुझे मार देगा। शाहिद की मां ने उसका सर सहलाते हुए कहा कि यहां कोई नहीं है, ना ही कोई तुम्हें मारेगा, यहां सिर्फ हम ही लोग हैं। देखो, कोई और नजर आ रहा है तुम्हें? यकीनन तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। अब सुकून से सो जाओ, यहां कोई नहीं है। शाहिद की मां ने उसे भरपूर अंदाज में तसल्ली दी तो वो सर हिलाता एक एहतियाती नजर अपने इर्द गिर्द डालकर सोने के लिए लेट गया। उसकी मां ने शाहिद पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी और कुछ देर वहीं उसके पास बैठी रही। बच्चे और राबिया वापस अपनी अपनी चारपाई पर सोने के लिए लेट गए थे। कुछ देर बाद जब शाहिद गहरी नींद सो गया तो उसकी मां भी उठकर अपनी चारपाई पर सोने चली गई। बाकी की रात सुकून से गुजरी थी। 2 दिन शाहिद की मां ने शाहिद को दुकान पर न जाने दिया कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। ये 2 दिन शाहिद ने घर पर ही गुजारे थे और उन 2 दिनों में उसे फिर से वो मखलूक नजर नहीं आई थी जिस पर वो खुदा का शुक्रगुजार होता कुछ पुरसुकून हो गया था। उससे अगले रोज शाहिद मामूल के मुताबिक उठा और नाश्ता करके अपनी दुकान पर चला आया। कल का सारा वाकया उसके जहन में ताज़ा था। उसकी दुकान घर से 10 मिनट की दूरी पर थी और रास्ते में एक जंगल आता था, वही जंगल जहां वो कल उस हादसे का शिकार हुआ था। कल के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो कभी भी इस जंगल के अंदर नहीं जाएगा। वो दुकान खोलकर मामूल के मुताबिक अपने ग्राहकों को निपटाने लगा था, जिनमें से कुछ उससे 2 दिन दुकान ना खुलने की वजह पूछ रहे थे, जिनको उसने ये कहकर टाला था कि वो बीमार था, तभी दुकान नहीं खोल सका। शाम के वक्त वो अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जंगल के करीब पहुंचकर उसे याद आया कि उसने तो सारे दिन के जमा किए हुए पैसे दुकान पर छोड़ दिए हैं। ये सब याद आते ही उसने साइकिल वापस मोड़ी और दुकान की तरफ रवाना हुआ। दुकान खोलकर वो अंदर आया तो अंदर से गड़गड़ाहट और पानी के गिरने की आवाज आ रही थी, जिससे फिजा में अजीब सा ही शोर पैदा हो रहा था। पानी गिरने की आवाज हमाम से आ रही थी। उसने पैसे निकालकर जेब में रखे और हमाम की तरफ बढ़ा, मगर जो ही वो हमाम में दाखिल हुआ तो पूरी दुकान उसकी चीखों से गूंज उठी, क्योंकि सामने ही नल से पानी की जगह खून बह रहा था और वो सारा खून बाथ टब में जमा हो रहा था और उस बाथ टब में एक वजूद बड़ा जमान था जिसका रुख दूसरी तरफ था। उसकी चीखों की आवाज सुनकर उस वजूद ने अपना रुख उसकी तरफ मोड़ा तो खौफ से शाहिद का वजूद पसीने में भीगता कांपने लगा। वो वही था जो उस रात उसे अपनी चारपाई पर अपने साथ लेटा नजर आया था। इससे पहले कि शाहिद वहां से भागता, वहां पर धुआं सा जमा होने लगा और उस धुएं के साथ ही अजीब सा शोर पैदा हुआ, जैसे बहुत से लोग एक साथ चल रहे हों। बिल्कुल वैसी ही आवाज थी जैसी बहुत से लोगों के कदमों की धमक की होती है। फिर उस धुएं से मुकम्मल अजसाम वजूद में आने लगे, जो कमोपेश वैसे ही थे जैसा वो बाथ टब में लेटा हुआ वजूद था। वो सब जाहिर होते ही अपने हाथ लंबे करते शाहिद की तरफ बढ़े। शाहिद रोता हुआ पीछे को होने लगा, लेकिन फिर वो सब उसे फिजा में मुअल्लक होते नजर आए और ये देखकर शाहिद अपने होशो हवास से बेगाना होकर जमीन पर गिर गया। उसके जमीन पर गिरते ही वो सब एक एक करके धुएं में तहलील होकर गायब होते चले गए। रात से दिन चढ़ आया था। जब उसे होश आया तो उसके इर्द गिर्द कई लोग जमा थे और वो अपनी दुकान में मौजूद कालीन पर लेटा हुआ था। वो रात का सारा मंजर याद करके तेजी से उठकर बैठा था। सब लोग अपनी अपनी कयास आराइयों में मगन थे कि शाहिद को क्या हुआ होगा। उसे होश में आते देखकर एक आदमी ने उसे पानी पिलाया, जिसे वो एक ही सांस में चढ़ा गया।
रात का मंजर अभी तक आंखों में बसा हुआ था और भुलाए ना भूल रहा था। उसे लग रहा था जैसे अभी वो सब के सब कहीं से निकल आएंगे और उस पर हमला कर देंगे। यही नहीं, उसे उनकी स्याह गहरी आंखें भुलाए ना भूल रही थीं। वो सब आदमियों को टुकर टुकर देखता, कुछ भी बताने की हालत में न था। एक आदमी ने उसे सहारा देकर उठाया तो वो जाकर कुर्सी पर बैठ गया। सब लोग वहीं मौजूद थे, जिस पर शाहिद ने कहा कि मैं अब ठीक हूं, तुम लोग जाओ। उसके कहने पर सब लोग एक एक करके दुकान से निकलते चले गए। उनके जाने के बाद उसने हमाम का जायजा लिया। सब कुछ साफ सुथरा था, किसी भी जगह पर खून का नामो निशान नहीं था। उसने डरते डरते नल खोल कर देखा तो वहां से भी साफ सुथरा पानी आ रहा था। वो हैरत में डूब गया कि कल रात तो यहां से खून बह रहा था, तो अब पानी कैसे? मगर उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। हर बात को जहन से झटक कर उसने पास वाली दुकान से नाश्ता किया और फिर ग्राहकों में मसरूफ हो गया। इस बीच उसके घर से उसकी बीवी राबिया का फोन आया था, जो उससे उसकी खैर खैरियत के साथ कल रात घर ना आने की वजह भी पूछ रही थी। अपनी खैर खैरियत की इत्तला देकर उसने दूसरे सवाल का जवाब घर आकर देने का कहा था कि फोन पर वो इतनी लंबी बात कैसे बताता। आज अंधेरा होने से पहले वो घर चले जाना चाहता था। तभी मगरिब की अजान से पहले ही उसने दुकान को बंद किया, पैसे इकट्ठे करके जेब में डाले और घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो जंगल भी उसे नजर आया था जहां से ये सब शुरू हुआ था, मगर वहां दबेज और खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। डरकर उसने तेजी से साइकिल चलानी शुरू की थी ताकि यहां से जल्दी से निकल सके। घर पहुंचकर वो चारपाई पर ढह गया था। उसकी माँ और बीवी राबिया घबराती हुई उसके पास आई थी। शाहिद ने उनको परेशान होते देखकर उठकर बैठते कल रात का सारा वाकया सुना दिया था, जिस पर वो भी कुछ परेशान हुई थी। उनको लग रहा था कि शाहिद पर आसेब का साया हो गया है, तभी ये सब हो रहा है, जिस पर शाहिद भी मुत्तफिक था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी माँ ने फैसला कर लिया था कि कल वो लोग किसी पीर या आमिल के पास जाएंगे ताकि इस मसले का हल निकल सके। खाना खाने के बाद वो सब लोग सोने के लिए लेट गए थे। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब शाहिद का छोटा बेटा चीखने लगा। उसकी चीखों की आवाज से सभी जाग उठे और उसकी तरफ लपके, जो बुरी तरह मचल रहा था। शाहिद ने उसे पकड़ना चाहा कि तभी अचानक वो बिल्कुल साकत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। उसके पुरसुकून होने पर सबने सुख का सांस लिया, लेकिन तभी अचानक उसने आंखें खोली तो उसकी दोनों आंखें मुकम्मल स्याह थीं, बिल्कुल वैसी जैसी शाहिद ने उस मखलूक की देखी थी। उसकी आंखों को देखकर सब एक झटके से पीछे हटे। वो सबको डरते देखकर कह के लगाने लगा, मगर उसकी आवाज में एक और भारी आवाज शामिल हो गई थी जो बेहद अजीब सी थी। उसकी बारीक और भारी अजीब सी आवाजें मिलकर पूरे घर में गूंजती खौफनाक सा मंजर पेश कर रही थी। शाहिद ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने अपने हाथों से शाहिद की गर्दन दबोच ली और जोर से दबाने लगा। शाहिद की आंखें उबलने लगीं और सांस रुकने लगा, जिसके बायस आंखों से पानी बहने लगा। राबिया ने अपने बेटे के हाथों को पकड़कर उसकी गिरफ्त शाहिद की गर्दन से हटानी चाहिए, मगर तभी उसने राबिया के बालों को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया तो वो पीछे पड़ी चारपाई पर जा गिरी। शाहिद ने उसके हाथ हटाने की कोशिश की तो वो अपना दबाव बढ़ाता कहका लगाता कहने लगा कि तुम लोग हमारा बहुत नुकसान करते हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को चोट लगी, तुमने हमारी तन्हाई में खलल डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शाहिद की माँ तेजी से आगे बढ़ी और कहा कि इस दफा माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हमसे मेरे बेटे को छोड़ दो। शाहिद की माँ के गिड़गिड़ाने पर उसने कहा कि चुप कर बुढ़िया, पहले तेरा शौहर और अब तेरा बेटा। पिछली दफा तो बच गए थे तुम लोग, लेकिन इस दफा नहीं बख्शूंगा। तुम शायद भूल गई हो हमें, लेकिन हम नहीं भूले। उसकी बात सुनकर शाहिद की माँ हक्की बक्की रह गई। जहन में माजी दौड़ने लगा था। उसने बेबसी से अपने बेटे को देखा जो मरने के करीब था। फिर अचानक उसके जहन में झमाका हुआ। उसने आगे बढ़कर अपने पोते के सीने पर हाथ रखा और कुरानी आयात का विर्द करने लगी। अचानक उसके पोते की गिरफ्त शाहिद के गले पर ढीली पड़ गई और वो तड़पने लगा। शाहिद की माँ ने विर्द करना जारी रखा तो उसके मुंह से अजीब सी गरगराहट निकलने लगी। उसका जिस्म मचलता तड़पता ढीला पड़ने लगा
और फिर उसके जिस्म से एक गहरे स्याह रंग का धुआं निकलता हुआ हवा में तहलील हो गया। शाहिद का बेटा बेहोश होकर चारपाई पर गिर गया था, जबकि शाहिद का खांस खांस कर बुरा हाल था। राबिया ने जाकर अपने बेटे को संभाला और उसे सीधा करके लिटाया। शाहिद का सांस बहाल हुआ तो अपने बेटे को देखा, जिसके चेहरे का रंग जर्द पड़ा हुआ था। राबिया ने बाकी बच्चों को भी सुलाया और अपनी सास को देखा, जो अब भी चुप बैठी किसी सोच में डूबी हुई थी। राबिया ने अपनी सास से पूछा कि क्या सोच रही हो अम्मा? उसके सवाल पर उसकी सास चौंकी थी। शाहिद ने पूछा कि वो कौन था जो मेरे बेटे के अंदर आन समाया था, और यही नहीं बल्कि उसके कहने से लग रहा था कि वो आपको पहले से जानता है। उसने कहा कि पिछली दफा तो बच गए थे, मगर इस बार नहीं। उसका क्या मतलब हुआ? शाहिद के पूछने पर उसकी मां ने कहा कि वो एक जिन था। उनकी बात सुनकर राबिया और शाहिद दोनों हैरत ज़दा रह गए। राबिया की सास ने मजीद कहा कि जो शाहिद को तंग करता है और जिसने शाहिद को चोट पहुंचाई वो एक जिन था। शाहिद उस दिन जंगल में गया था, तो उसने गलती से जो पत्थर मारा वो शायद उस जिन की बेटी को लगा था और उसे चोट पहुंच गई। तभी वो गुस्से में आकर अब शाहिद का दुश्मन बन गया है और उसे तकलीफ पहुंचा रहा है। राबिया ने पूछा कि वो शाहिद के बाप की क्या बात कर रहा था। राबिया की सास ने गहरा सांस भरा और फिर माजी में पहुंच गई। शाहिद के बाप का नाम इम्तियाज था। उसकी शादी जब शाहिद की मां यानी शाजिया से हुई थी, तब उसके पास कोई कारोबार नहीं था। उसका बाप भी एक नाई था। आगे उसका पेशा भी नाई का ही था। किसी वजह से अपने बाप से झगड़कर वो अलहदा हो गया और अपने बाप के घर को छोड़कर इम्तियाज ने किराए पर घर ले लिया और फिर अपनी दुकान के लिए जगह ढूंढने लगा। जल्द ही उसे दुकान के लिए जगह मिल गई, जहां वो अपनी हजामत की दुकान डाल लेता। साथ ही साथ वो वहां हमाम भी बनाने वाला था। वो जगह उसे बेहद सस्ते दामों मिल गई थी, जिस पर वो कुछ हैरान भी हुआ था। कुछ लोगों ने उसे समझाया भी था कि यहाँ पर तामीर का काम शुरू ना करे, ना ही दुकान बनाए, क्योंकि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है। वो उसे वहां दुकान बनाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर उसने दुकान बना ली तो जिन्नात का बसेरा वहां मुश्किल हो जाएगा और वो वहां से दरबदर हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो जिन्नात उसके दुश्मन हो जाएंगे। लेकिन इम्तियाज ने सबकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। उसे लगा था कि ये सब उससे जलकर ये सब कह रहे हैं ताकि वो वहां दुकान न बना सके और उसका कारोबार ना चल सके। लोगों की एक ना सुनते इम्तियाज ने वहां दुकान की तामीर शुरू कर दी। वो जल्द से जल्द दुकान तामीर करवाना चाहता था, क्योंकि उसे घर का किराया भी देना था और घर के बाकी खर्चे भी पूरे करने थे, जो तभी पूरे हो पाते जब वो कमाने लग जाता। दुकान की तामीर जारी थी, मगर रोज अजीब बात होना शुरू हो गई। कभी दुकान की एक दीवार गिर जाती तो कभी दूसरी, कभी दरवाजा उखड़ जाता तो कभी खिड़की बाहर गिर जाती। इस तरह इम्तियाज को नुकसान होने लगा था, क्योंकि एक दीवार भी मिस्त्री एक दिन में खड़ी करता था और जो सीमेंट और रेत वगैरह लगता था, उसके अलावा मिस्त्री और मजदूर की उजरत भी दोबारा तामीर करवाने से दुगने खर्च होती, जिससे इम्तियाज परेशान होने लगा था। एक महीना गुजर गया, मगर उसकी दुकान मुकम्मल तामीर ना हो पाई। आसपास दुकानों वाले उसे ताने मारते और मजाक उड़ाते कि समझाया भी था कि ना डालो इस जगह दुकान, मगर तुम नहीं माने, अब भुगतो। ये जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर बसेरा करने वाले जन्नात ही कर रहे हैं, और आखिर करें भी क्यों ना, तुम उनका ठिकाना छीन रहे हो। इम्तियाज हलक फाड़ कर कहता कि वो ठिकाना नहीं छीन रहा, इस जगह की उसने कीमत अदा की है, तो यहाँ वो जो मर्जी बनाए, वो जन्नात उसे रोकने वाले कोई नहीं होते। दुकानदार कहते कि तुमसे पहले इस जगह पर उन जन्नात का ठिकाना था, अगर तुम्हें तुम्हारे घर से कोई निकाले तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल इसी तरह उनको भी बुरा लगता है, और वो तुम्हें यहाँ दुकान बनाने नहीं देंगे। और इस जगह के मालिक ने भी इसीलिए ये जगह सस्ती बेच दी, क्योंकि वो जन्नात उसे इस जगह पर कुछ भी तामीर करने नहीं दे रहे थे। एक लिहाज से उसके लिए ये जगह फालतू ही थी। सबकी बातें सुन सुनकर इम्तियाज पागल होने लगा था, और रही सही कसर तब निकली जब एक दिन वो दुकान वाली जगह पर पहुंचा तो ये देखकर गम और सदमे से मजीद पागल हो गया कि दुकान की सारी दीवारें ढह गई थी और अब वो जगह खंडर का मंजर पेश कर रही थी। अब तो इम्तियाज को भी जिद हो चली थी कि वो यहाँ दुकान ना सिर्फ बनाकर दिखाएगा, बल्कि उन जिन्नात को यहाँ से निकाल कर यहाँ पर कमाई भी करेगा। अपनी सारी मेहनत को जाया होते देखकर वो अगले ही दिन एक आलिम को अपने साथ ले आया था, जिसको उसने सारी बात बता दी थी।
اور اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ ان جنات کو یہاں سے بھگا دے گا، اور اس عالم پر یقین کر کے امتیاز اسے یہاں اپنی دکان کے کھنڈر میں لے آیا تھا۔ عامل نے آتے ہی اپنا عمل شروع کیا تھا۔ امتیاز باہر ہی کھڑا تھا۔ عامل نے اسے اندر آنے سے منع کر دیا تھا، تبھی وہ باہر انتظار کر رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، تبھی باقی کے دکاندار اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب اندر سے امتیاز کو عجیب سی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی۔ چیزوں کے ٹوٹنے پھوٹنے، گرنے اور عجیب سی بھاری گڑگڑاہٹ کی آواز تھی جو ماحول پہ چھائے سناٹے کو ختم کر رہی تھی۔ وہ باہر کھڑا کھڑا ہی خوف سے لرزنے لگا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ کہیں اس نے عامل کو لا کر غلط تو نہیں کر دیا، مگر اب سوچنے سے کیا ہوتا، اب وہ لا چکا تھا۔ تقریباً فجر کے وقت شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ عامل اندر سے باہر آیا تھا جو جگہ جگہ سے زخمی تھا، کپڑے بھی کچھ پھٹ سے گئے تھے، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر امتیاز بھی گھبرا گیا تھا، لیکن عامل نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور ان جنات کو بھگانے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر امتیاز کی جان میں جان آئی۔ عامل نے کہا کہ اب وہ جنات یہاں سے چلے گئے ہیں تو اب تم آرام سے یہاں دکان کی تعمیر کر سکتے ہو۔ اس کی بات سن کر امتیاز نے عامل کو اس کی اجرت دی اور پھر گھر کو روانہ ہو گیا۔ اگلے ایک ہفتے میں دکان کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی اور پھر وہاں پر امتیاز نے اپنا کاروبار شروع کیا جو پھلتا پھولتا گیا۔ لوگ جوک در جوک امتیاز کے پاس حجامت کے لیے آنے لگے اور اس کے حالات سنبھلنے لگے۔ اس نے شازیہ سے کچھ بھی نہ چھپایا تھا، بلکہ جو ہوا وہ سب بتا دیا۔ شازیہ نے پہلے تو اسے ان جنات سے نہ الجھنے کا مشورہ دیا تھا، مگر پھر جب عامل نے ان جنات کو بھگا دیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ ویسے بھی اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ پھر شاہد کی پیدائش ہوئی تو وہ سب کچھ بھول کر اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ یہ دکان جو آج شاہد کے پاس تھی، یہ وہی تھی جو امتیاز نے بنائی تھی اور جہاں ان جنات کا بسیرا تھا۔ امتیاز تو اب مر چکا تھا، مگر شازیہ کو امید نہیں تھی کہ اتنے سالوں بعد پھر سے وہ جنات اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کی جان کے دشمن بن جائیں گے۔ شازیہ ساری کہانی سنا کر چپ ہوئی تو شاہد اور رابعہ نے گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھا، یعنی کہ وہ لوگ شاہد کو پہچان گئے تھے کہ یہ امتیاز کا ہی بیٹا ہے، تبھی تو اب اس کے پیچھے پڑ گئے تھے اپنا پرانا بدلہ لینے کے لیے۔ شاہد کی شکل امتیاز سے بہت ملتی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ آسانی سے اسے پہچان گئے، مگر اب شاہد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ وہ رات انہوں نے بے چینی اور فکر مندی میں گزاری تھی۔ یہی سوچ سوچ کر ان کا برا حال ہو رہا تھا کہ اگر ان جنات نے ان کے بچوں کو نقصان پہنچا دیا تو وہ کیا کریں گے۔ یہی سوچ ان کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن شاہد ناشتہ کر کے انہی سوچوں میں پریشان اپنی دکان پر پہنچا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا اور وہ پریشانی سے پوری دکان کو دیکھنے لگا جو ٹوٹی پھوٹی تھی۔ سارا سامان زمین پر بکھرا پڑا تھا، کرسی بھی ٹوٹ چکی تھی، جبکہ آئینہ بھی زمین پر گرا چکنا چور ہو گیا تھا۔ کوئی بھی چیز صحیح سلامت نہیں تھی اور شاہد کو شک نہیں، پورا یقین تھا کہ یہ حرکت ضرور ان جنات کی ہے جو ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ شاہد نے نفی میں سر ہلا کر سارا سامان اٹھانا شروع کیا۔ جو سامان ٹھیک تھا اور ٹوٹا نہیں تھا اسے ایک طرف سنبھال کر رکھا، اور جو سامان ٹوٹ گیا تھا اسے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنا شروع کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے کرسی کو کھڑا کیا جس کے 2 پائے ٹوٹ گئے تھے، پھر کرسی اٹھا کر بڑھئی کے پاس لے گیا جس نے اس کی کرسی کے پائے ٹھیک کر دیے۔ وہاں سے وہ بازار آیا، نیا آئینہ خرید کر لایا اور کرسی کو رکھ کر آئینہ سیٹ کیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دکان کو بند کیا اور پھر اس عامل کے آستانے پر پہنچ گیا جس کا پتہ اسے اس کے دوست نے دیا تھا، کیونکہ اب اس سے ملنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اب بھی اگر وہ ان جنات کو یوں ہی جانے دیتا تو شاید اس کا مزید نقصان ہو جاتا جو وہ اس وقت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے میں وہ عامل کے آستانے پر پہنچ گیا تھا جہاں مریدوں کا رش لگا ہوا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ ایسے میں وہ بھی اپنی باری کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ اس کی باری آئی تو وہ اندر گیا جہاں ایک عامل ہرے رنگ کا لمبا سا چوغا پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ عمر میں وہ 35-36 برس کا معلوم ہو رہا تھا۔ سر پر ہرے رنگ کا کپڑا ٹوپی کی طرح باندھ رکھا تھا جس سے اس کے کندھوں تک آتے لمبے گھنگرالے بھورے بال نظر آ رہے تھے۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے منکوں والی 2 مالائیں تھیں، جبکہ انگلیوں میں بھی بڑے بڑے نگینوں والی انگوٹھیاں پہن رکھی تھی۔
दो मुरीद दाएं बाएं खड़े उसे पंखा झल रहे थे और खुद वो एक छोटे से तख्तनुमा लकड़ी पर बैठा हुआ था। एक औरत वहां से उठकर अब बाहर की जानिब बढ़ रही थी। उस औरत के जाते ही शाहिद उस आमिल के सामने जाकर बैठ गया और उसे सलाम करने लगा, जिसका उसने सर हिलाकर जवाब दिया। उसके हाथ में तस्बीह थी जिस पर वो कुछ पढ़कर मोती गिराता जा रहा था। शाहिद ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बता दी। अपनी माँ शाजिया से मालूम हुआ माजी का किस्सा भी सुना दिया और जो खुद के साथ बीती वो हर बात भी बता दी, जिसे वो आमिल खामोशी से सुनता रहा। उस आमिल ने उसकी सारी बात सुनकर सर हिलाया और उसे पानी की एक बोतल पर दम करके दिया और कहा, ये पानी अभी जाकर अपने घर वालों को पिला दो और मैं शाम को तुम्हारी दुकान पर आऊँगा। शाहिद ने आमिल की बात सुनकर सर हिलाया और फिर उससे बोतल थाम कर अपनी दुकान का पता देकर बाहर निकल आया। उसका रुख अब घर की तरफ था। घर पहुंचकर उसने सब बच्चों को, अपनी माँ और बीवी को वो पानी पिलाया और खुद भी पिया। उसके सारे बच्चे आज घर पर थे, तभी उसे उन्हें पानी पिलाने में आसानी हो गई थी। सबको पानी पिलाकर वो दुकान की तरफ रवाना हुआ। उसे इत्मीनान था कि अब उसका ये मसला हल हो जाएगा। दुकान पर पहुंचकर उसने दुकान खोली तो उसे हमाम के नल से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने घबरा कर हमाम की तरफ देखा और फिर दबे कदमों उस जाने बढ़ा। वो हमाम में दाखिल हुआ तो बाथ टब में कोई लेटा हुआ था और नल से पानी की जगह खून बह रहा था। ये देखकर शाहिद का सांस खुश्क हुआ, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि बाथ टब में कोई और नहीं बल्कि वही जिन है। उस जिन ने गर्दन मोड़कर शाहिद को देखा और बाथ टब से बाहर निकल आया। उसके सारे जिस्म से खून निचड़ रहा था, वही खून जो बाथ टब में था। वो फिजा में मुअल्लक होता शाहिद के करीब आया तो शाहिद घबराकर हमाम से बाहर आया। वो जिन भी उसके पीछे पीछे हमाम से बाहर दुकान में आ गया। इससे पहले कि वो जिन शाहिद को कोई नुकसान पहुंचाता, शाहिद तेजी से उसके सामने हाथ जोड़ता जमीन पर बैठा और बोला कि मेरी वजह से तुम्हारी बेटी को जो चोट लगी उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझकर तुम्हारी बेटी को चोट नहीं पहुँचाई, बल्कि गलती से मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे मत मारो। शाहिद ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर उससे माफ़ी मांगी, जिस पर उस जिन ने भड़क कर उसे देखा और कहा, जानबूझकर नहीं, मगर चोट तो पहुंचाई उसे तुमने, और तुमने जो किया उसके लिए हम तुम्हें माफ़ भी कर दें, मगर तुम्हारे बाप ने जो मेरे बाप के साथ किया था उसका क्या? तुम्हारे बाप की वजह से हमारी माँ आज भी तकलीफ़ में है। तुम्हारे बाप की वजह से हमारा बाप हमारे पास नहीं है और तुम्हारे बाप के किए की सज़ा तुम्हें ही भुगतनी होगी। गुस्से से भड़क कर इतना कहकर वो जिनजाद तेजी से शाहिद की तरफ बढ़ा। खौफ से शाहिद का खून खुश्क हो गया कि अब तो यकीनन वो जिनजाद उसे मार ही डालेगा। उस जिनजाद ने शाहिद की गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया और एक ही पल में उसकी गर्दन को दबोच लिया, मगर शाहिद की गर्दन दबोचते ही उसके हलक से चीखें सी निकलने लगी। वो जिनजाद रोने बिलखने लगा, जिससे दुकान में अजीब सा शोर मच गया। उसने एक झटके से शाहिद की गर्दन को छोड़ा। उसी वक्त वहां एक से ज्यादा जिन नमूदार हुए और वो सब शाहिद की तरफ लपके। शाहिद उठकर दरवाजे की तरफ भागा, मगर उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी दरवाज़ा ना खुला। वो सभी जिन एक साथ उस पर हमलावर हुए, लेकिन जैसे ही वो शाहिद को छूते वो तकलीफ से रोना बिलखना शुरू कर देते और शाहिद को छोड़कर पीछे होते जाते। शाहिद के देखते ही देखते वो सारे जिन्नात तड़पते बिलखते एक एक करके गायब होते चले गए और शाहिद की दुकान खाली हो गई। शाहिद ने हैरत से उनको तकलीफ से तड़प कर गायब होते देखा था। उसे समझ नहीं आया था कि अचानक वो सब उसके सामने कमजोर कैसे पड़ गए, पर उसके जहन में झमाका सा हुआ। यकीनन वो सब उस आमिल के पानी की वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। ये उस आमिल का पानी ही का असर था कि वो शाहिद को मार ना पाए। ये सोच आते ही वो दिल ही दिल में उस आमिल का मशकूर हुआ था। बाकी का सारा दिन उसका सुकून से गुजरा था। किसी भी जिन ने आकर ना उसे तंग किया था, ना ही उसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन शाहिद की दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया था। वो सारा दिन फारिग ही बैठा रह गया था और उस वजह से शदीद परेशान भी। शाम के साए गहरे हुए तो वो आमिल जिसके पास वो अपना मसला लेकर गया था और जिसने उसे यकीन दिलाया था कि वो उसके मसले का हल कर देगा, उसकी दुकान पर आ गया था। शाहिद उसे जल्दी से अंदर ले आया और फिर उसके लिए चाय पानी का इंतज़ाम किया।
आज शाहिद घर नहीं जाने वाला था और यही आमिल के साथ रुकने वाला था। तभी उसने अपने घर पर फ़ोन करके अपने आज रात घर ना आने की इत्तला दे दी थी। उसे यकीन था कि जिस तरह वो जिन्नात उसे आज नुकसान नहीं पहुंचा पाए, वैसे ही उसके घर वालों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सबने ही आमिल का दिया पानी पिया था, जिसकी वजह से वो उन जिन्नात के शर से महफूज रहते। उसने आमिल को आज हुआ वाक़या भी पूरे शद्दोमत से बता दिया था, जिसे सुनकर उस आमिल ने उस वाक़या पर कोई तबसरा नहीं किया था। उस आमिल ने चाय पानी पीने के बाद दुकान के वस्त में अपना सामान रखा और खुद भी बैठ गया। लीमू, लाल रंग का कपड़ा, छोटे छोटे बनाए गए पुतले, छोटी छोटी लकड़ियां और हरे रंग का पाउडर इस सारे सामान में शामिल था। उसने शाहिद को दुकान का दरवाज़ा बंद करने का कहा और खुद लकड़ियों से आग जलाने लगा। आग जलाकर उसने उन पुतलों को आग के चारों अतराफ में रखा और फिर उन पुतलों के ऊपर एक एक लीमू रखकर उस हरे पाउडर को मुट्ठी में भरा और मुंह ही मुंह में कुछ पड़कर उस पाउडर पर फूंका और फिर उस पाउडर को आग में फेंका। उस पाउडर के आग में गिरते ही वो आग मजीद भड़की, जैसे उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया गया हो। आग भड़कते ही वो आमिल फिर से वही अमल दोहराकर बारी बारी उस पाउडर को आग में फेंकने लगा, जिससे वो आग मजीद भड़कने लगी। कुछ ही देर में पूरी दुकान अजीब और खौफनाक से चीखों पुकार से गूंज उठी थी। पूरी दुकान में अजीब सी बदबू फैलना शुरू हो चुकी थी, जिसके बाद शाहिद को अपने नाक पर कपड़ा रखना पड़ा। दुकान में चीखों पुकार बढ़ती जा रही थी, जिससे शाहिद के कानों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन आमिल इस सबसे बेनियाज अपने अमल में मसरूफ था। आधा घंटा गुजर चुका था जब अचानक आग के इर्द गिर्द स्याह धुआं सा फैलना शुरू हुआ और देखते ही देखते पूरी दुकान स्याह धुएं से भर गई। आमिल ने मजीद तेजी से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। जितनी तेजी से वो अमल पढ़ रहा था, उतनी तेजी से ही वो स्याह गहरा धुआं पूरी दुकान में चकराने लगा था और फिर अचानक उस धुएं से स्याह से अज्जाम वजूद में आने लगे। देखते ही देखते वो धुआं कई जिन्नात के वजूदों में बदल गया और अब उस आमिल के हर तरफ वो जिन्नात उसको घेर कर खड़े थे। शाहिद इतने सारे जिन्नात को देखकर डर गया, लेकिन वो आमिल मुतमईन रहा। वो सारे जिन्नात उसके गिर्द खड़े चीख रहे थे, रो रहे थे, मगर उस आमिल पर उनकी चीखों पुकार का कोई असर नहीं हो रहा था। मगर शाहिद के कानों से हल्का हल्का खून रिसने लगा, क्योंकि उसके कान उन जिन्नात की इतनी खौफनाक और भयानक आवाज़ें सह नहीं पा रहे थे। अचानक आमिल ने अपनी आंखें खोली और अपने इर्द गिर्द खड़े जिन्नात को देखते सब पर एक फूंक मारी, जिससे वो सारे के सारे जिन्नात घुटनों के बल उसके सामने झुक गए। उनमें से एक जिन ने कहा कि हमें जाने दो, हम दोबारा इसे तंग नहीं करेंगे, मगर हमें कैद मत करो। आमिल ने कहा कि जब ये तुमसे रो रो कर गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांग रहा था, तब तुमने क्यों इसे मुआफ ना किया और क्यों इसे तंग किया? उसने अपनी गलती मान ली थी, फिर क्यों उसे तकलीफ पहुंचाते रहे? दूसरे जिन ने कहा कि हमने इसे मुआफ किया, आइंदा हम इसे तंग नहीं करेंगे। हमने जो किया वो गुस्से और बदले के लिए किया। हम यहाँ से चले जाएंगे और कभी इसे तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। इस बार हमें जाने दो। आमिल ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुम किस बदले की बात कर रहे हो? तुम्हारी बेटी को चोट पहुंचाने का बदला? जिस जिनजादी की बेटी को चोट लगी थी, उसने कहा कि उसके बाप ने मेरे बाप और दादा को घर बदर कर दिया था, और यही नहीं बल्कि इसके बाप ने हमारे बाप को कैद करवा दिया था, जिसकी वजह से बाकी सबको उन्हें यहाँ छोड़कर भागना पड़ा। आमिल उसकी बात सुनकर चौंका और कहा कि तुम्हारे बाप को कैद करवा दिया गया था? शाहिद ने तेजी से कहा कि मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं, मेरा बाप तो बहुत अरसा पहले ही मर गया है। उस जिनजाद ने कहा कि जिस आमिल के जरिए उसने मेरे बाप दादा को यहाँ से निकाला था, उस आमिल ने मेरे बाप को यहाँ कैद कर दिया था, क्योंकि मेरा बाप यहाँ से जाने को तैयार नहीं था और वो उस आमिल के सामने डट गया था। दोनों के बीच लड़ाई भी हुई, मगर फिर वो आमिल जीत गया और मेरे बाप को यहीं इसी दुकान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। उस जिनजात की बात सुनकर शाहिद भी हैरान और परेशान रह गया। उसे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि यहाँ उसकी दुकान में एक जिन कैद है। आमिल ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे बाप को आज़ाद कर दूं तो क्या तुम उसका और उसके घर वालों का पीछा छोड़ दोगे? उस जिनजाद ने तेजी से कहा कि हाँ, हम इसका पीछा छोड़ देंगे। उसकी बात सुनकर आमिल ने सर हिलाया और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा।
वो ज़ेरे लब कुछ पढ़ता, अपने दोनों हाथ दाएं बाएं हिलाता, जैसे कुछ टटोल रहा था। शाहिद और सभी जिन्नात बेचैनी और परेशानी से उसे देख रहे थे। फिर कुछ ही देर में आमिल ने आंखें खोली और कहा कि तुम्हारा बाप वहां कैद है, मगर तुम उसे यहां से खुद जादू के जरिए नहीं निकाल सकोगे। ये काम शाहिद को ही करना होगा। आमिल ने हमाम की तरफ इशारा करते हुए मजीद बताया कि वो जिन हमाम में पड़े बाथ टब के नीचे जमीन में कैद है। शाहिद ने उसकी बात सुनकर सर हिलाया और करीबी दुकान से जमीन की खुदाई का सामान ले आया और फिर बाथ टब वहां से उखेड़ कर वो उस जमीन की सीध में खुदाई करने लगा। उसने तकरीबन 5 फुट जमीन खोद डाली और इस सब में आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर गया था। और फिर 5 फीट जमीन की गहराई में खुदाई करने के बाद नीचे से एक सफेद रंग की बोतल नजर आई, जिसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ था और उस बोतल के अंदर स्याह रंग का धुआं भरा हुआ था। शाहिद ने जल्दी से वो बोतल आमिल के हवाले की, जो वो बोतल पकड़कर बाहर आया और अपनी जगह पर बैठकर उस बोतल पर कुछ पढ़ना शुरू किया। 5 मिनट के बाद उसने वो बोतल खोली तो उसके अंदर से वो स्याह धुआं बाहर निकल आया और देखते ही देखते एक जिन में बदल गया। मगर वो जिन काफी बूढ़ा था। अपने बाप को अपनी आंखों के सामने देखकर सारे जिन्नात खुशी से नक्कारे बजाने लगे, जिससे एक बार फिर अजीब सा शोर दुकान में गूंजा। उसके बाद उन सभी जिन्नात ने उस आमिल का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो कभी शाहिद को या उसके घर वालों को तंग नहीं करेंगे। फिर अपने बाप को लेकर वहां से गायब हो गए, जो इतना अरसा कैद में रहने के बायस बीमार पड़ गया था। उसके जाते ही आमिल ने शाहिद को पानी पर दम करके दिया और कहा कि यह पानी दुकान के चारों कोनों में छिड़क देना। शाहिद ने उस आमिल को उसकी उजरत दी और उसका शुक्रिया अदा किया। आमिल के जाने के बाद उसने पानी को दुकान के चारों कोनों में छिड़का और फिर घर की तरफ रवाना हो गया, ताकि घर वालों को भी ये खुशखबरी सुना सके कि अब वो जिन्नात से महफूज हो गए हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।